ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਵਧਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की गुरबाणी इस जग में चानन उसकी रोशनी विच जो कुछ तुहाडे नाल साझा कर सका परवान करना जी। कुछ दिन होए मैं आप जी का एक प्रोग्राम श्रवण कर रहा था। किसी गुरमुख वीर वालों इस विचार कर दिया इस लाइन में साझा किया गया कि तीर्थ नावा जे इस भावा बिन बहाने के नाल करी तीर्थां ते इशनान करा जे तैनू चंगा लगे जे तैनू पा जाए जे तैनू परवान होवे ते जे तैनू ही पसंद ना होवे तैनू ना पावदा होवे मैं तीर्थां ते फिर के नहा के की लेना। बस ये लाइन मेरी कन्नी पई जी रोजाना नितनेम का भी हिस्सा है। मन अंदर एक ख्याल आया ते इनके केंद्री बिंदु लफ्ज जिहड़ा है वो है भावा। तीर्थ नाम जे इस भावा बिन बहाने बिना तैनू भांदे चंगे लगदे मैं तीर्थां ते नहीं जावां। केंद्र बिंदु है भावा ते मन विच ख्याल आया इस भावा दा लफ्ज इन्ना शक्तिशाली है कि इनके द्वारे कर्ता ते किरत दोनों ही खलोते हैं। क्यों? क्योंकि संसार भी भावां ते खलोता है। जिन्ना खेड़ा है दुनिया का सारा भावां ते खलोता है। संसार का खेड़ा तक किते रह गया, निरंकार का खेड़ा जिहड़ा है वो भी भावां ते खड़ा है। जेड़ी गल जेड़ी चीज मैनू नहीं पाउंदी जे वो हो जाए या मैनू करनी पै जाए तो मेरा खेड़ा खत्म हो गया, मेरी खुशी खत्म हो गई। खुशी तो मेरी इसे गल विच है ना कि जो कुछ मैनू चंगा लगे वो होवे, जो कुछ चंगा लगे वो कर सका। हुण संसार अंदर मैं देखना कि पहला मैं संसार की गल करना चाहता। संसार अंदर मैं देखना कि मनुख का जीवन जन्म तो लैके बचपन तो लैके बुढ़ेपे तक भावां ते खड़ा है। बचपन विच मित्रां दोस्तां नाल उसने खेडना, जे उन्हां दी मित्रता इनू चंगी लगे ते इनदी
ਮਿੱਤਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮਿੱਤਰ ਆ ਜਾਏ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗੂੜ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਜਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਖੇਡ ਅਧੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਭਾਵਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਨੀ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਗਾ ਘਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਗਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਈਵਨ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗਾਹਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗਾਹਕ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਛੱਡ ਨਾ ਸਕੇ ਆਤਮਕ ਮਨੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਵਸਤੂਆਂ ਤੱਕ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਅਮਾਉਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੱਦਰ ਪਹਿਨਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ? ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੱਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹੋ, ਥਾਣਾ ਦੇ ਥਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਸੰਦ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲੋਂ ਨੂੰਹਾਂ, ਧੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਤਾਓ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖੇੜਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹ ਪਸੰਦ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੱਧਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿੱਥੋਂ ਖੁੱਲਣਾ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਪਸੰਦ ਨਾਲ, ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਬੇਪਸੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਬਿਨ ਬਹਾਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭਾਗਾ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਸੰਦ ਟੁੱਟੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
प्राप्ति जिहड़ी है वो पसंद विच है, तो मैनूं गुरबाणी की एक लाइन सामने आई, मैं तुहाडे नाल साझी करना चाहना। गुरु के सामने, रब के सामने सिख एक ख्याल पेश करना है, भगत एक बेनती करना है, इस भावने का मसला है। कहते ने राम हम क्या जानना हो, क्या भाव है, उत्थे भी लफज भाव है। राम हम क्या जानना हो, क्या भाव है। मन प्यास बहुत दर्शावे, मेरे मन अंदर बड़ी प्यास लगी हुई है, मैं तेरे दर्शन करा, तेरी गलकड़ी विच आवां, तेरे नाल मेरी सांझ बने, तू मेरा ते मैं तेरा हो जाऊंगा। पर मजबूरी है, मैं तेनू भावां किवें, मेरा केड़ा काम, मेरी केड़ी, मेरा केड़ा गुण तेनू चंगा लगदा है। क्योंकि जिन्नी देर मैं तेनू चंगा नहीं लगूंगा, उन्नी देर मेरा तू पसंद नहीं करेगा, मैनू नेड़े नहीं लिया। जिहड़ी चीज ना हो जाए, जिहड़ी चीज में ना चंगी लगे होंगे, तू मन टुट जाता। ਹੁਣ ਥਾਂ नहीं मिलती अपने घर ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ वो क्या जानना, क्या भाव है, मन प्यास बहुत दर्शाव है। मैं तेरे अगे बेनती करना, वेख मेरे मन की प्यास, मेरे मन की तांग, मैं चाहना तेन छेती मिला। पर सोची पिया होया किहड़े गुण नाल मिला जिहड़ा तेनू पसंद आ जाए, वो की करा जिहदे नाल तू मैनू पसंद कर ले। शब्द जो पढ़े फिर के अगे रखिया, जित दिशा दरबार मुंहों के बोलन बोली है, जित सुन करे प्यार है। मैं केड़े बोल बोलना, कमन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई की, मैनू कोई गुण का पता लगे, वो गुण मेरे विच है कि नहीं। क्योंकि जिन्हां कोल नहीं, वो तो संसार अंदर रब तो विछड़े हुए आखदे ने, से मैं गुण नाही हो क्या करी तो अगन। इसलिए मैनू एक मन की तांग करके तेरे अगे फरियाद करनी पई, वो है कि मैनू दस दे तैनू की चंगा लगदा। मसला ये है पौंदा विन माने के ना करिए। इत्थे मसला सिर्फ नहाउण दा नहीं, जीवन के हर करतब दा, जिंदगी के हर मोड़ ते हर कर्म के नाल संबंधित है भावना। हे मालिक मैनू दस दे मैं की करा। गुरबाणी अंदर बहुत थावां ये लफज आए, कह लगे कमन सो अखर, कमन गुण, कमन सो मणिया मंत, कमन सो बेसो हों करी। जित वस आवे मैं क्यों ये कपड़े पावा, क्यों ये बोल बोलना, किस ढंग नाल जे तेनू पसंद आ जाए मसल भावना। क्योंकि मेरा मैं ही जिंदगी अंदर भावना नाल नहीं खिड़दा, रुकना चाहना पड़ेगा। असीं हुण तक अपनियां भावना की गल कीती कि साडा खेड़ा, साडी खुशी इस गल विच सानू साडी पसंद की चीज मिल जाए, चंगी। पर एक ख्याल करियो, इहो चीज आयद रब दे भी हुंदी है। रब सदा खेड़े वाला है, सानू ते कदे वो काम भी करना पैंदा जिहड़ा सानू पसंद ना होवे। किसी दे हुक्म विच गुलाम होण करके किसी दे हुक्म विच करना पैंदा, सानू पसंद नहीं, पर वो काम करना पैंदा, उहदे विच सानू खुशी नहीं मिलदी। क्योंकि खुशी खेड़ा पसंद विच खड़ा है। वो साडी काम साडे पसंद नहीं सी,
इस वास्ते सानू खुशी नहीं मिली। हुण रब जिहड़ा है, प्रभु जिहड़ा है, उनका खेड़ा भी पसंद विच लोआ ते रुकना चाहता, वो हमेशा खिड़िया रहिंदा। असीं कहने वो खुशी है, उत्थे सोग है ही नहीं, ना को मरे ना होवे सोग, दिन रहे ने चुप है भोग गुणे हो होर ना ही कोई, उहदे कोल खेड़ा ही खेड़ा है। बल्कि जिस आदमी ने खेड़ा लैना, गुरु ने आख्या अविनाशी खेम चाहे जे नानक सदा सिमर नारायण, उहदे कोल खेड़ा ही खेड़ा है। हुण देखना उहदे कोल खेड़ा क्यों है, ते साडे कोल अधूरा है, कई बारी हुंदा है, कई बारी नहीं हुंदा। कोई काम साडी पसंद दा हो जांदा है, कोई नहीं पसंद दा। मैनू किसे साधु दे लाइनां सामने आई, वो कहता जो चाहता है वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, होता नहीं, जो भाता है वो रहता नहीं, जो मैनू चंगा लगता वो मेरे को रहिंदा नहीं। तो असीं एक ऐसे हालात विच घिरे होए हां कि सब काम साडी पसंद दा नहीं। साडी सारी जिंदगी दे चुगले अज दी प्रेजेंट लाइफ दे अंदर भी तुसीं देखोगे सानू परेशानियां ने, आत्मिक तौर ते, आर्थिक तौर ते, समाजिक तौर ते, ईवन धार्मिक तौर ते साडे सामने परेशानियां ने, धार्मिक तौर ते भी। उनका कारण की है? क्योंकि सब कुछ साडी पसंद ते नहीं होएगा, नहीं हो रहा। पर रब नूं असीं ये नहीं कह सकते भी उनकी पसंद ते कुछ नहीं हुंदा, वो सदा खेड़ा के आउंदा। क्यों? क्योंकि जो तिस भाव है उत्थे भी लफ्ज़ ही आ गया भाव है, जो तिस भाव है सोई करसी। जो च पाउंदा भावदा नूं चंगा लगदा करदा। बल्कि गुरु ने बाणी विच इत्थों तक कर दिता, कहंदे अपन भावन कर, अपने भाव दी गल काम गल करदा है, मंत्र ना दूसरों उधार, किसी होर दूजे की सलाह नहीं लैंदा। उनके सामने अपना कोई मंत्र, अपनी सलाह, अपनी कोई राय, अपना कोई फैसला नहीं सुना सकता कि महाराज हे रब तू आ चाहना पर नहीं, मैं आ नहीं कर देना, आ कर देना। इसलिए जिंदे कोल हमेशा अपनी भावना, अपनी पसंद करने का अधिकार होवे, उनके सामने कभी सोग हो ही नहीं सकता। वो हमेशा खेड़े विच है। रब दे खेड़े का कारण भी ये हुआ है क्योंकि वो मंत्र न दूसरो धार आपन भावने का, जो किस भावे सोई करसी। तो कहन तो भावे है कि मालिक जिहड़ा है उनकी पसंद विच उनका खेड़ा है, वो हमेशा अपनी पसंद विच रहिंदा है। हुण देखना यह है कि जे तू उस रब दे प्रभु दे नेड़े होना चाहना है तो उनकी पसंद जान लो, क्योंकि उन्हें तो तेरी पसंद वरतनी नहीं, तू उनकी पसंद विच आउणा। तीर्थ ना होना ज्योतिष भावा विण भाने केला है करी। मसला यह है तेनू की पसंद है, इत्थे भी हो लोग राम हम क्या जानना क्या भाव है, पर मन प्यास बहुत दिन साहब है, मेरे मन दिल मिलन की बड़ी तौल है, बड़ी प्यास है, बड़ी पर करम की उस चाहत मेरी पूरा कम किवें हो गया। तो ये कि मैनू पता लग जाए तेनू की होंदा, मैं जानता नहीं, क्या जानना क्या भाव है। हुण असीं जे दूजे पासे ये आखने आ कि संत ते राम इक्को ने, राम संत मैं भेड़ के सुनाई, इनका मतलब संत उन्होंने पसंद है। ते फिर उहदे कोल पुछिए तेन केड़ा संत पसंद है, क्योंकि गल तो पसंद ही है। उन्हें कह दिता कि जेड़े लोग सिर्फ गल विच माला पा के हाथ विच गड़वा फड़ के
लंबा चोला पा के गोल पग बन के संत बन गया, उन्होंने लोग संत कहन लग पे, उन्होंने इश्तिहार भी संत दे छपन लग पे कि वो पसंद रब दी भी है। फिर फकीर ते ना जिस भावा का सवाल ही ना रहता, जेडे तीर्थों के हजारां लोग लखा करते हैं, वैसी गल तो है नहीं भी तीर्थों ते रौनक नहीं। सवाल भावां दा है। गुरु ने ऐसे भी कह दिता, वो हर के संत ना आखिए, वो संत नहीं, ऐसे संत ना वो तो वहां उथे भावे आ गया। मैं तो भावे लफ्ज में स्पष्ट कर देता, ऐसे संत ना वो तो वहां है। मैनू ये संत नहीं चंगे लगते, पसंद नहीं। इहदा मतलब जिन्ना संत ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਵਾਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੇ कहता भी ऐसे संत ना मोह को भाव है। फिर क्या सवाल होगा कि जी क्यों जे संत तेनू चंगे लगते हैं? संत क्यों? कल किसी सज्जन ने एक बड़ा सरल जहा सवाल किया, कहने लगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब सुखमनी साहब संत की बड़ी सिफत है, बड़ी सिफत है, पर एक तो नहीं ना उनके नाल ना लिखे हुआ क्यों जे संत भी आ गया। और हर के संत आखिए विनाश के ठाली जिन्ना जप मालियां लोटे हाथ ने पग, हर के संत ना आखिए बनारस के ठागी। ऐसे संत ना मुक्त भाव है जी। फिर ये दस दियो केड़े संत तेन चंगे लगदे ने? ये माला गल च पाउण वाले जिहड़े विच चोरियां वाले पसंद नहीं तां केड़े? गुरबाणी चुका स्पष्ट पता है ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਈ ਸੰਤ, ਉਥੇ कहता है सो संत वो को भाव है जी। फिर केड़ा संत? कहने लगे सोई संत, उसे फिर भावे लफ्ज आ गया। सोई संत जो भावे राम। गल तो भावना दी है, पसंद भी है। पसंद ना होवे ते भावे तीर्थां ते नहीं जाए, पसंद ना होवे भावे गला विच माला पाई जाए, पसंद ना होवे भावे गोल पाओ के लगे चोरे जारी डेरा ते आसन लाई जाए 18 मिनट। सवाल ही नहीं, सवाल तो भाव तेन चंगा की लगता है। कहने लगे सोई संत जो भावे राम। हम फिर एक सवाल खड़ा हो गया कि राम नूं वो संत किवें पा गया ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਸ ਸੰਤ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੋਈ ਸੰਤ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਆਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਭਾ ਗਿਆ, ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। अगली लाइन पढ़ो। कहने लगे निशानी ये है कि संत गोबिंद का एक है काम। उनका सुभाव रब नाल मिल जाता है, उनके काम रब नाल मिल जाते हैं। जेडे काम रब नूं पसंद ने उन्होंने पसंद हो जाते हैं। जाना इसी कि गुरु दे सिख की निशानी की है। गुरु नूं जो चंगा लगता है वही सिख करता है। जो सिख जो सिख करता है वो गुरु नूं पसंद है, क्योंकि दोनों का सुभाव मिल गया। सतगुर के जी की सार न जापे ये पूरे सतगुर भावे, इतनी भावे। सतगुर के जी की सार न जापे ये पूरे सतगुर भावे। फिर कहने लगी गुरसिखा अंदर सतगुर बरता है। सोई संत जे भावे राम। संत गोबिंद के एक काम, उन्होंने काम उनके काम वखरे नहीं,
तो फिर वो या कुछ भी नहीं करता जो मेरे रब नूं पसंद ना हो। जीवन की सफलता परमार्थिक तौर पर सिख दी संत दी एक भावे लफज विच है। जे इनू समझ लाए कि मेरे रब नूं जे मैनूं मित्रां दी भावना दी लोड़ महसूस होंदी, जदों मनुख नूं मित्र ना समाज नूं ना भावे ना मनुख अज इन्हां विच जिहड़े सुखदे ने क्यों सुखदे नहीं किसी आदमी नूं, उन्हां नूं समाज चंगा नहीं समझदा, समाज च रहण दे योग नहीं, समाज नूं इन्हां कोलों खतरा है जेल च पा दे। ते मैं कई बार कहना कि कई बार तो ऐसा मनुख समा होंदा कि मनुख नूं अपना आप भी चंगा नहीं लगदा। वो कहता मैं वो जीवन की करना, अज सुसाइड करते हैं उन्होंने अपना जीवन चंगा नहीं लगता, पाउंदा नहीं। दुनिया के लोग दिन रात अपना जीवन जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर ने दवाइयां मेडिसिन ने सब इंजेक्शन दिते जाते, किस तरह मैं बचिया रहा। कि कोई मनुख ऐसा भी है कि वो जिस समाज में जो पखे न लटके ते जान दे रहे, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना आप पसंद नहीं, गल तो पसंद ही है, उन्होंने अपना जीवन पसंद नहीं। कि गुरु यो गल कहते हैं, जे पसंद ते ही सब कुछ है, सारा खेड़ा सारी खुशी सारी प्राप्ति पसंद ते है, तो फिर विश्वास कर रब भी पसंद ते खड़ा है। जिन्नी देर तू उन्हें पसंद नहीं आवेगा उन्नी देर तेनू वो अपनी गिलवकड़ी विच नहीं लेगा। इसीलिए कह दिता कि हे प्रभु आराम हो क्या जानना, क्या बात है, मन प्यास बहुत दर्शावे, तेरे दर्शन की प्यास बड़ी लगी हुई है, पर मैनू पता नहीं लग रहा तेन की चंगा लगता है। हुण सानू गुरु की इत्थे लोड़ है, क्योंकि सानू ये समझा दे कि रब नूं की चंगा लगता है, किहड़े काम कर के रब तेनू पसंद करे कि अपनी गलबकी च लै। गुरु ने इसीलिए कह दिता सतपुरख जिन्हें जाने सतगुर इसका नाम, जिहड़ा रब नूं जानदा होवे कि उहनूं किहड़ी कर्म चंगे लगदे ने। किते ऐसा ना होवे गुरु जी ने आख्या अंधला सिख भी अंधे कर्म करे, चलन भाने चलन अपने, रब दे भाने नूं जानदा ही नहीं, रब नूं की पाउंदा वो जानदा ही नहीं। इसलिए सतगुरु की बाणी गुरु रूप बाणी जिहड़ी सानू ये समझा रही है कि रब नूं की चंगा लगदा है। जे तू उह बाणी नूं हिरदे च वसा के अपने जीवन का हिस्सा बना लवे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, जे उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बना लवे, जो गुरबाणी अगवाई करे, गुरु रूप बाणी अगवाई करे, जे तू उसको अपने जीवन का हिस्सा बना के उस दे अनुसार कर्म अपने बदल लवे, अपने कर्मों को सेध दे लवे, तो विश्वास कर वो कर्म तेरे नहीं होंगे, मेरे रब की पसंद होंगे। जिस दिन तेरे कर्म रब की पसंद बन जाएंगे तो उनकी गलवकड़ी विच फिर तेनू विछड़ के दुखी गुरु ने क्या कह दिता, कहने लगे अपने भाणे जो चले भाई विछड़ टोटा खावे। इसलिए रब की पसंद विच आउण लई गुरु की अगवाई की लोड़ है, क्योंकि सतपुरख नूं वो जानदा है, सतगुरु उसदा नाम है, उहदी अगवाई विच सिख दा उद्धार हुंदा है। तिस कै संग सिख उधरै, उहदी संगत विच गुरु की बाणी की अगवाई विच जे मनुख अपने जीवन का अपने कर्मां का आधार बना लवे। इसलिए गुरु ने कह दिता कि मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी नाम है, क्योंकि गुरु की बाणी गुरु जिहड़ी गुरु रूप बाणी है वो मैनू मेरे जीवन के कर्मां वो सेध दे रही है, वो अगवाई कर रही है कि मेरा जीवन मेरे रब नूं पसंद आ जाए। कि जिस दिन उन्हें पसंद आ जाए उस दिन तू रोकड़ी विच है। इन शब्दां रखना जा चिता फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।